Audio CD number 3. Director of Information and Public Relations, Shri Prahlad Jadhav, once at Mantralaya, Mumbai, gave a magazine, namely Harmony, to Mr. Borkar, published by an association of IS community, and Shri Ramesh Chandra Kanade, Principal Secretary, Protocol, Government of Maharashtra, who was its editor. Mr. Prahlad Jadhav asked back for his magazine, but it was worth reading, and Mr. Borkar had come across with its editor, who was then a principal labor secretary and instrumental in drafting a code, abolition of child labor in the state. So many times he had been in his office and press conferences. Issue did impress Mr. Borkar. When asked for its copy, Mr. Jadhav questioned Mr. Borkar what he understood from the article staying fresh. "Oh," said Mr. Jadhav, as he was fully satisfied by Mr. Borkar's answer. The same day, Mr. Borkar had a meeting with Labour Commissioner Shri B.D. Sanab at Labour Commissionerate, Tardev, Mumbai. Mr. Sanab questioned Mr. Borkar from where he got the copy of the magazine. Mr. Borkar narrated the whole episode happened with Mr. Jadhav at Mantralaya. And Mr. Sanab, so pleased with his enumerated words that he asked him to repeat it. And Mr. Sanab exclaimed Mr. Borkar by saying he had gone through the very article, but not with the way of yours. Japan Ka Sagar was one of the subject of motivation talk of journalist Mr. Sharad Borkar, which was appreciated by Shri MP Zahil, Superintendent Engineer, Central Public Works Department, Shri S.A. Kalkutti, Superintendent Engineer, MIDC, Shri V.V. Katalkar, Deputy Director of Industrial Safety and Health, and Shri P.S. Karmase, Labour Enforcement Officer, Central, held at Hotel Ritz, Pune. Such kind of motivation talks of Mr. Borkar has been held in central and state government offices, including industries of repute, Tata, Birla, Mahindra and Mahindra, Exide Batteries, and in organizations such as NIRI, MIDC, Central and Western Railway, Tata Power, and in Bombay Port Trust, Mumbai. Following is the Hindi version of his motivation talk, Japan Ka Sagar. जापान का सागर सागर एक जैसे होते हैं, लेकिन सागर के किनारे में अनेक उपलब्धियां अलग अलग होती है। जापान सागर के किनारों पे मछलियों का मिलना बड़ा मुश्किल था। जापान के वो किनारों में मछलियां आना एक दुर्लभ बात थी। इसलिए मछुआरों ने काफी तादाद में मछली पकड़ने के लिए आगे और समुद्र में आगे जाने की अपनी ताकत लगाई। जो व्यक्ति अंदर कोसों दूर जाने के बाद मछलियां लेके आता था, तो परिणाम विरुद्ध दिशा से उसके नजर में आते।
मछलियां अधिक तादाद में होने के बावजूद भी मछली का बेचा हुआ दाम उसको भारी कमी मात्रा में मिलता था। प्रश्न यह था कि समुद्र किनारों के पास में मिली हुई मछली यहां टेस्टी होती थी और अंदर दूर तक जाकर लाई हुई मछली में उसका टेस्ट विपरीत दिखाई देता। इस कल्पना को किस तरह से सुलझाया जाए, ये सारे मछुआरे कम्युनिटी ने एक सभा ले ली और मछुआरे लोग पहाड़ी की वो खोल दरी में रस्सी डालकर मछली सागर किनारे के वो तट से ही वो किनारे से लेके आने में अपना प्रणाम दिखाने लगे। जो लोग सागर के किनारे से मछली लाकर बाजार में जल्द से जल्द बेचने में अपनी कृति निभाते थे, उनको मछली के भाव अधिक अच्छे मिल पाते थे। लेकिन दुर्लभ मछली का किनारा होने से जापान के लोगों को आवश्यक हुआ मछली पूर्ति होती नहीं थी। इसलिए मछुआरे नहीं तो जापान का पार्लियामेंट मछली किस तरह से मिली जाए, हमारे तटों पे मछली किस तरह से निर्माण की जाए, इसमें लग गया। पहली बात, बोट नैया ये छोटी होने की वजह से उसे बड़े मायनों में मछली ले आए, इसलिए बड़ी से बड़ी बोट बनाना सागर के किनारों पे एक कारखाना शुरू हो गया। ये पानी में का जहाज, ये बोट, ये नैया जब समुद्र में अंदर जाती थी तो निश्चित रूप से मछलियों का लाना सुलभ सा हो जाता था। किंतु प्रमाण में भारी कमी आने वाले किनारों पे मछलियां भारी दाम पे बिकी जाती थी और जापान के लोगों को मछली के लिए दुगुना भाव देना पड़ता था। बाजार में इस तरह की बातें होने से मछुआरों ने कुछ व्हाइट कॉलर लोगों को भी अपने सभा में आमंत्रित किया और जापान के व्हाइट कॉलर वाले लोग मछुआरे की वो सभा में अपने उपस्थिति देने हाजिर हो गए।
सभा में प्रश्न आया कि हमारे देश की उपलब्धि के लिए हम अधिक से अधिक तादाद में मछली सागर के किनारों पे किस तरह से लाने में समर्थ होंगे। और जो इंजीनियर्स थे उन्होंने वही नैया में, वही बोट में, वही पानी के जहाज को एक अलग रूप देके वो नैया फास्ट कैसे जाएगी और वापस जल्द से जल्द कैसे आएगी, इसके प्रमाण प्रथम कागज पे उतारे। वो जापान का तट था। जापान कितना अपनी मायने रखता है ये बताना मेरे लिए उचित नहीं होगा। अरे देश, जिस देश को तोड़ डाला, खत्म कर दिया, वो जापान अपने ताकत पे कैसा खड़ा होगा, यह प्रश्न हर एक के दिलो दिमाग में प्रथम आना चाहिए।